target minus y. Therefore, when we calculate the derivative, I told you in the very beginning, if it is target minus y, the derivative at the end, this red box, is going to be a negative number. So this 0.06 will be a negative number because this thing, derivative of the output with respect to the slope or the weight, is minus x. So whenever we have the value of x, it is going to be minus x for this. And similarly, for the bias, it was minus 1. Therefore, both of these will be updated by using these values. Let us do the calculation once again and try to find out what mistake did we commit. Okay, so this is not going to be 0.06, it will be negative 0.06. Therefore, the whole answer is going to be negative into negative, and that will be positive. So whatever we have here, 0.5 plus, this is the learning rate alpha, into 0.06, that is 0.03. It will be added. Minus into minus will be added. So what is the updated answer? हाँ जी. Ji, can you hear me? 25 students here. Can anybody tell me what will be the answer? This will be 0.5. 0.53, sir. Plus इसका आंसर आ जाएगा 0.03. So the total is going to be 0.53. So this is the updated W. Similarly, here it is going to be 0.035 added into this. So the answer is going to be 0.2. Yes, sir. 0.23. 235 if we want to go to 3 decimal places. Right. So I think it is Hasnan giving the answers. बाकियों ने मेरे ख्याल है आपको ना स्पोक्स पर्सन रख लिया हुआ है. You should ask them for irregular salary. With these two values, बाकी हमारे पास जो है we are using the same. X is going to be 0.8. ये change नहीं होगा. Target is going to be 1. So with these two values, let us do a couple of more iterations. So X is still going to be 0.8 and the target is 1. But now we have the updated slope and the bias. Let us do the calculation quickly. So we said Z is equal to Wx plus B, which is now 0.53 into 0.8. I repeat, X does not change. Input feature कभी भी change नहीं होता. And plus 0.235. So the answer of all this will be
0.659. And we have to apply the sigmoid on this. Gee, what is the answer now? सर 10 वाला लगाना है या दूसरा e की नहीं पावर? नहीं, ऊपर हमने कौन सा सिग्मॉइड लगाया था? वी यूज सिंपल सिग्मॉइड। ओके सर। और वो 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z। सर 0.6590 आया सर। Therefore, the error target minus the prediction 1 minus 0.659, and this is going to be equal to 0.34. G. 0.341 to be exact. एक्टिवेशन फंक्शन के बाद बिल्कुल सेम आने आ सकता है, चेंजेस आने लाजमी नहीं होता। क्या मतलब? सर जैसे हमारा जो वैल्यू आई थी 0.659 आई है, एक्टिवेशन हाँ। फंक्शन के बाद भी 0.659 रही है। तो मतलब उसमें क्या परेशानी क्या है? नहीं ठीक है, वैसे सर आ सकता है इस तरह, ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेम आंसर आ सकते हैं एक्टिवेशन के बाद? यस यस यस। एक दफा कंफर्म कर लें, आपने कहीं कोई फनकारी ना की हो। सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस x है ना, और x की जो वैल्यू 0.659 है। वेरी गुड। तो इसको आप दोबारा ट्राई कर लें तो 0.659035 ये आ रहा है। सो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। यस सर ठीक। यस सर, यही आंसर। यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, कोई मसला नहीं है। वजह यह है कि जब वो इसको सिंपल सा ड्रॉ करें, ये 1 है ये 0 है, तो कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे वो भी सेम होगा। ये आपका 0.659 जो है, ये एक ऐसा पॉइंट आया वेयर द z and the sigmoid of z both are same. So it is a very fortunate value. इसको नोट कर लें, बल्कि बड़ा सा प्रिंट करा के कहीं लगा लें। All right, the first error was 0.355. ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ, it was 0.355. Now the error is 0.341. If we do the same thing once more, we will have to calculate all of these. कर लेंगे या मैं आपको करवाऊं एक दफा? चलें, कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। वी नीड जस्ट वन मोर वैल्यू, ताकि वो 2 आइट्रेशंस का ना आपको फर्क पता चल जाएगा। सो द एरर विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, error with respect to this the output is 0.341. Previously it was 0.355. Then the output इसको predicted वैसे लिख देना चाहिए। चलें, you understand what is happening here. With respect to the z is going to be sigmoid into sigmoid 1 minus sigmoid.
So 0.659 multiplied with 1 minus 0.659, and this will be G. सर वो सेम ही 0.224719 सलाम सर। 0.22 जी वालेकुम सलाम। सर ये हसनैन भाई से सवाल करना था एक कि हसनैन भाई आपने जो YouTube पे वीडियोस अपलोड की हैं लेक्चर 1 to 8, जी तो उसमें मतलब यार कुछ वीडियोस एक्सपायर भी हो गई थी ना, तो उसमें ये 1 से लेके 8 तक की मतलब लेक्चर वाइज हैं सारी। जो मुझे लास्ट मिली थी ना जो डाउनलोड हो सकती थी वो मैंने सारी करके अपलोड कर दी है। बट सर जो डाउनलोड नहीं हुई वो फिर आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए थी। दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी सर, कि वो एक्सपायर हो गई हैं। सो सर वो एक्सपायर की बात नहीं सर, वो उस टाइम डाउनलोड भी नहीं हो रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि इशू आ रहा था उनमें। चलिए अभी इस वक्त जो है ना ये हम जल्दी से कर लेते हैं। ओके सो ओके ये 0.2 सिग्मॉइड इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड जी, क्या आंसर है इसका? 0.2247 सर। 2247 को 5 कर लेते हैं, 0.225। ओके सर। पहले हमारे पास ये वैल्यू आई थी 0.22, अगला हमने इसका कैलकुलेटिंग किया था। अब आपको थोड़ा सा फर्क इसमें मिल जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द z with respect to w. So इसमें माइनस लगाना है। इट विल बी 0.341 multiplied with 0.225 multiplied with minus x. And similarly, ये सॉरी ये मैं नीचे गलत लिख गया हूं, दिस इज b। बाय से होती है तो इट इज -1। इसको साथ साथ सेव करते रहे बिकॉज माय कंप्यूटर समटाइम क्रैशेस। जी क्या आंसर आया? सर ऊपर वाली की वैल्यू -0.0614 और ये सर नीचे वाले की -0.0767। पहले हमने मेरे ख्याल राउंड ऑफ इसको कम किया था, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज। तो बहुत कम आपको एरर का फर्क नजर आएगा, बट स्टिल इट विल बी appreciable. Let's try and do it. The updated values. So now the W new is going to be old W, which was 0.53 minus the alpha learning rate multiplied with the partial 0.0614, and you will get an updated value. Similarly, B new will be 0.235 0.07। दोनों के आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लें। सर ऊपर वाली क्या गया 0.5607 और इसका सर वो कर रहा हूँ। अगेन माइनस इंटू माइनस है, ये दोनों ऐड होंगे। सर 0.27335।
चलें यहाँ तक ही कर लेते हैं ये this good enough. Now Yes. this was See. the calculation, and if we carry on with it, one last thing will be to calculate the z with these values. X does not change. G, anybody? Sir, 0.72156. 0.7, 0.72? G, 156. 7 to 1 कर लो इसको. Yes, sir, 1 कर लो. ठीक हो गया. 1.5 था, वैसे ये 7.12 कर लेना चाहिए था इसको. 2. इसका sigmoid Yes, sir, करें. 2. What is the sigmoid? अब ये सेम नहीं आना चाहिए. It's 0.6730, sir. Therefore, the error now target minus 0.673, and this is equal to 0.327, sir. 0.327. Very good. We got the information. So now we have got three values of the errors. If we look at error 1, सबसे पहले हमारे पास एरर आया था, किधर गया जी एरर, 0.355. The second error was 0.341, and the third error is 0.327. So now if we quickly do the gradient, यहाँ E2 minus E1 क्या आंसर आया? Sir, minus 0.014. Then same thing here, E3 minus E2. Sir, minus 0.014. ये same आ गया only because we used decimal places. Rounding off बहुत ज़्यादा हमने की थी, does not matter. Still it is giving us plausible information जो हमें चाहिए. And the idea is that if we plot this thing on epoch 1, error 1, error 2, error 3, and here we have just the error information. कहीं से ये start हुआ 355. Let's suppose it was around here. This was E1. The point to note is gradient has got a negative sign. इसका मतलब है the slope is downwards. So if I just say this is 0.35 and then I get 0.34, it will be somewhere here. And because the gradient is negative,
you can yourself see that the slope is going downwards. Same thing, 0.32 रह गया. So if I write it here 0.33, ये एक में नीचे आ रहा था तो 0.2 के करीब एरर रह गया, which will be somewhere here. Again you will see that the slope is downwards because of the negative gradient. With the repeated experiments, आप ये देखेंगे कि this thing goes down and down and down and down until it becomes almost horizontal. So this is the error minimization. We are reducing the error with every epoch, and this is what we plan to do with back propagation. जब ये line almost horizontal हो जाएगी, which means there is no significant difference between the previous error and the next error, then we can stop. अब आप लोगों ने भी देखा है, we rounded off pretty quickly और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हमें आया. The same thing I discussed with the students of other class, that what should be the precision of the calculations. I gave them the example that if I use a calculator जो कि बहुत ज़्यादा round off कर देता है, और आजकल the buzzword is that you can use GPU for acceleration of calculations. So GPU acceleration means all these calculations will be carried out on the GPUs instead of the CPU. Benefit इसका क्या है? Number one, faster calculations. Then most of us are familiar with the company NVIDIA giving us the GPUs. Let's suppose उसकी एक series है which is GeForce. ये जो आपको लैब में भी मिला हुआ है, GeForce GTX something, and most of us have these in the laptops. और दूसरी एक series है which is called Quadro. Quadro is slightly expensive than GeForce. वजह क्या है? GeForce I have used in my experiments, and this gives me the precision of up to 10 raised to power minus 9. Means के zeros अगर आप लगाएं 0.0009 लगाएं, वहां तक it gives me a good approximation. हमने अभी 3 places of decimal को देखा था. This gives us something good until 9 places of decimal. Whereas if I use Quadro, this is usually an expensive card. वजह क्या है? It allows us to estimate the precision for up to 19 decimal points. इससे ज़्यादा भी करता है, but if you read about it, 19 decimal places तक it gives us good calculation. So if we are doing the error minimization, GeForce will try to converge faster. Quadro will take slightly longer क्योंकि यहाँ तक significance calculate कर रहा है, so the results will be slightly better. ये सिर्फ आपके knowledge के लिए, this is not part of the lecture, this is not part of the exam. I will not be asking you about this. It is only and only for your reference. आपको पता होना चाहिए, if you appear in a job interview और वो आपसे पूछ लें why do we prefer to use Quadro for machine learning instead of GeForce, this is the answer that you should be giving. Okay, this is from the previous thing that we did.
एक्सक्यूज मी सर। Excused. सर मैं अब्दुल मनान हूँ सर। असल में सर हम रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, इधर इंटरनेट का बड़ा स्वेयर इशू है, तो काइंडली अगर अटेंडेंस लगाए हैं तो प्लीज हमें मार्क कर दीजिएगा। मैं और नुमान है, इफ आपकी पॉसिबल। आवाज आ गई है मनान, आप बिल्कुल ठीक है। आपके साथ कौन है? सर मैं और नुमान है सर। असल में पता है क्या, नेट बार बार आ रहा है, असल में सफर में है ना हम, जीटी रोड पे हैं, तो नेट आ रहा है जा रहा है, बार बार कॉल ड्रॉप हो रही है मेरी, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नुमान की आवाज तो सुना दें ताकि पता चले आप वाकई नुमान के साथ हैं। नुमान सर फरीद हेलो अहमद भी बताओ। सर प्रेजेंट है, मैंने लेट ज्वाइन की थी। फरीद अहमद अस्सलाम भी वालेकुम आपके सर। साथ हैं? कल मैं भी प्रेजेंट नहीं हूँ, मैंने नहीं भी लेट सर, थोड़ा सा ज्वाइन किया था। मैं और मनान, नुमान अजमल और मनान। ठीक हो गया, ओके ओके, ऑल राइट। चलो सो लेट्स शुक्रिया सर। थैंक यू प्रोसीड। सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। शहरोज हसन, शहरोज हसन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। मोहम्मद शुएब, प्रेजेंट। उस्मान अली, उस्मान अली, फरीद अहमद का हो गया, सलमान बदर। ये सर फरीद अहमद प्रेजेंट है। जी जी, फरीद अहमद प्रेजेंट है। सलमान बदर, यस सर, सलमान प्रेजेंट। उसामा खालिद, यस सर, सामा खाली प्रेजेंट। अमीरुन निसा, प्रेजेंट सर। हमजा खालिद, प्रेजेंट। हसनैन अली भी हैं, उस्मान जाहिद, प्रेजेंट। मोहम्मद अली हमजा, प्रेजेंट सर। अली हमजा प्रेजेंट। अब्दुल मनान ने अभी फोन पे बताया है, मोहम्मद कासिम, प्रेजेंट सर। नुमान अजमल भी उनके साथ है, महद हुसैन, महद हुसैन, दानियाल इरफान, दानियाल इरफान, उमैर तौकीर, उमैर तौकीर, सर जी उस्मान अली भी प्रेजेंट, वो मेरा माइक इशू था, मैंने चैट में भेज दिया था। चैट असल में साथ साथ पढ़ी नहीं जा सकती, चलें दो सर, जगहों उस्मान पे। अली प्रेजेंट। ओके। असफंद खालिद, प्रेजेंट सर। लुकमान अरशद, प्रेजेंट सर। मनाहिल मली, प्रेजेंट सर। सैयद वलीद उमर, प्रेजेंट सर। निमरा सईद, प्रेजेंट। अकबर हुसैन साबरी, प्रेजेंट सर। हाफिज उजैर, ये भी हैं, ठीक है। वर्दा अरशद, वर्दा सर उन्होंने अरशद। चैट में लिख के भेजा है, तो वो काइंडली देख लीजिए। चैट पे क्या भेज रहे हैं आप लोग? सर वो माइक या इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ प्रेजेंट लिख देते हैं। फातिमा शाहिद, प्रेजेंट सर। मोइज रिजवान, मोइज रिजवान, अनीका इलियास, ये तो प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, काफी शुरू में लेक्चर में इन्होंने ज्वाइन किया था, वेरी गुड। उमर सत्तार, उमर सत्तार, हसन अली, प्रेजेंट सर। कोमल वाजिद, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला महमूद, ये अब्दुल्ला महमूद ने भी यहाँ प्रेजेंट कहा हुआ है।
हाउ कैन आई मेक श्योर कि ये इसी स्टूडेंट ने जो है वो ओके हैदरमान प्रेजेंट सर। एंड मोहम्मद मुबशर हसन. Present, sir. Okay, so we सर have उमैर got तो की प्रेजेंट। सर उस्मान अली आपने प्रेजेंट कर दिया था ना? उस्मान अली प्रेजेंट है. तौकीर जी सर उमैर प्रेजेंट, उमैर तो की। उमैर तौकीर ओके जी प्रेजेंट हो गए. ऑल राइट सर जी. सर एक्टिवेशन फंक्शंस से जो ऑनवर्ड वीडियोस हैं वो तो सारी डाउनलोड भी कर ली हैं, देख भी ली हैं। प्लीज़ अगर किसी के पास आप कह दें अगर वीडियोस प्रीवियस वाली हैं तो लिंक वो जो चैनल बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके उसका प्लीज़ लिंक शेयर कर दें रिवीजन के लिए, ताकि क्योंकि पीटीए बैन कर दे मुझे. चलें जी, जिसके पास है वीडियोस वो इनसे शेयर कर लें. एंड प्लीज़ काइंडली आई कैन नॉट बी श्योर कि आपको पिछली वीडियोस मिलेंगी या नहीं, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस गुड हैबिट ऑफ डाउनलोडिंग देम राइट देयर एंड देन. पहले ये मसला नहीं था, बट नाउ माइक्रोसॉफ्ट हैज सर उसमें imposed वो this सर मैंने restriction. पिछले वीक को भी आपको बोला था कि डाउनलोड करने में मसला आ रहा है। नहीं, डाउनलोड वजह ये है कि मैंने मन्नान को भी समझाया था, इट्स अ वेरी ह्यूज लार्ज फाइल, तो उसको यस टाइम सर। दिया करें. वो 5 मिनट में डाउनलोड नहीं होगी, इट विल टेक एटलीस्ट 20 to 30 minutes. ओके, कमिंग बैक. सो वी हैव सीन के प्रिसीजन से क्या मसला पड़ता है, बट होपफुली यू विल नॉट रन इनटू सच प्रॉब्लम्स. वैसे अगर जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज आप पढ़ना चाहें तो इंटेल का एक प्रोसेसर था पेंटियम 3, उसमें भी 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम देता था. सो इट इज ए नोन इशू दैट प्रिसीजन कैलकुलेशन फ्लोटिंग पॉइंट की हमेशा से प्रॉब्लम रही है. सो यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू ए स्लाइटली मोर इलेबोरेट एग्जांपल. अभी तक तो हमने सिर्फ एक न्यूरॉन को देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए नेटवर्क. सर एक क्वेश्चन था सर. जी, क्वेश्चन आए जी. सर जो हमने एरर फाइंड किया 1 माइनस वाला जो हम ऊपर करते आ रहे हैं सर, बिल्कुल. ये सर हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए है और हमारी आउटपुट क्लास 1 है. यस, अभी अभी जो है ना, आई एम जस्ट यूजिंग द सिंपल मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन स्क्वेयर्ड एरर. आई एम नॉट कंसिडरिंग द क्रॉस एंट्रोपी वाला. यस सर. आंसर उससे भी सही आ जाएगा, जी सर. बट इट विल एड अनदर स्टेप ऑफ कैलकुलेशन. जी सर ठीक है सर, बस वो ही कंफर्म आई करना था. एम जस्ट सेविंग टाइम. जिस जी तरह आप जो है वो 10H से भी ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट दैट इज जस्ट गोइंग टू टेक मोर टाइम. यू कैन कंफर्म दीज, आपको किसी ने रोका नहीं है. इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप 10 के साथ भी इसको कैलकुलेट करके देख लें. और 10 जो है, इफ यू आर familiar with this, then the derivative of this 10, जी any idea? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप बहुत माहिर हैं इन फॉरगेटिंग थिंग्स. सो 10 का जो है, दिस इज सिंपली 1 माइनस स्क्वायर. सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन. 10 का जो डेरिवेटिव है दैट इज जस्ट 1 माइनस द स्क्वायर ऑफ दैट. ये याद रख लें, कहीं ना कहीं आपको ये जिंदगी में फायदा दे जाएगा. ऑल राइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ सर इज, जो हम एक्टिवेशन फंक्शन के बाद जो हमारी वैल्यू आती है सर, उसे जी सर जी, हम एक्यूरेसी कह सकते हैं. एक्टिवेशन फंक्शन के बाद जो आंसर आ रहा है, यस सर. अगर आपके पास नहीं, एक्यूरेसी क्या चीज होती है? कि सर हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है. देखें, अगर तो आपके पास एक ही सैंपल है, जी सर. ठीक हो गया. जी जी सर. एंड supposedly you are working with target 1.
यस सर बिल्कुल। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये एक डिस्कशन है, दिस इज जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकिन डिस्कशन है. लेट्स सपोज, लेट्स से there is only one sample. ठीक हो गया जी. एंड टारगेट इज इक्वल टू 1. 1 का मतलब है 1.0. अब आप कह रहे हैं इफ द प्रिडिक्शन इज, जिस तरह हमने ऊपर किया 0.69, राइट? यस सर वो यस सर. इफ प्रिडिक्शन इज लेट्स से 0.69, तो इसे आप अपनी रियल लाइफ में एज्यूम कर सकते हैं कि आपके 100 में से 69 मार्क्स आ गए हैं, तो यू आर 69% एक्यूरेट. यस सर बिल्कुल. गॉट इट? यस सर बिल्कुल. अगर आपके यहाँ 98 आ जाता तो यू वुड बी 98% एक्यूरेट. वी आर ओनली डीलिंग विद वन सैंपल, उसमें तो ये चल जाएगा. बट इफ वी हैव मोर देन वन सैंपल, फिर आपको ये ऐड करना पड़ेगा. आज ये हम कर लें, इसके बाद आई प्लान टू डू सम प्रोग्रामिंग डिस्कशंस विद यू, उसमें ही हम सारे कैलकुलेट करेंगे. तो 1 को अगर हम 100 कह दें तो 0.69 is 69, so you can say accuracy is 69%. लेकिन this cannot be used in all the cases. अगर टारगेट आपका कुछ और है, 3 है, और यहां आपके पास आ रहा है 1.45, let's suppose target is 3 and you get predicted 1.79, इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? You will सर use the percentage formula. सर फिर हम वो अपनी एक्यूरेसी वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपने पढ़ाया था हमें. नहीं, आप ये कर लें, परसेंटेज वाला फॉर्मूला. ओके सर. ठीक हो गया ना कि कितने परसेंट आपको सही जवाब मिला है. बट वी आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग इट. हम मुश्किल काम करेंगे जिससे आपको जो है ना वो okay, let me just copy the network from another PDF. ये असाइनमेंट में से I'm just going to copy it. Snapshot tool. This is the network. All right. Coming here. Okay, this is the famous network which has been used multiple times. इसका benefit सबसे बड़ा ये है that the calculations are very, very straightforward and you get good answers in the end. So, if this is the network given to us, what we have to do is consider the inputs x1 and x2 and try to predict the target, which is also a vector. So this is basically one hot encoding. इसका मतलब होगा this is close to 0, इसका मतलब होगा this is close to 1. So if we are talking about cats and dogs, we can say this is probably an image of dogs. Otherwise it is binary classification. एक न्यूरॉन से भी हो सकता है, but to make it understandable and to know what we are doing, it is a target vector in one hot encoding format. Iris dataset भी आपको ऐसे ही मिलता है. We can use that, लेकिन उसमें फिर 3 क्लासें हो जाएंगी.
and it will increase the calculations that we have to do. और क्लास में इतना कुछ possible नहीं होगा. We are left with only 30 more minutes. Okay, your quiz will be conducted on Monday. दूसरे सेक्शन का भी आज क्विज नहीं हुआ था. They couldn't get time for revision. So your quiz also will be held on Monday. दूसरा अब्दुल मनान रास्ते में है. He cannot appear for the quiz. तो उनकी हम ताज़ीम में we are postponing the quiz till Monday. All right. So what is happening over here is the input vector x consisting of the x1 and x2, दो features हैं सिर्फ. These are being given to the hidden neurons H1, H2. वहाँ हमारे पास दोनों काम हो रहे हैं. We have got the activation, we have got the summation and the activation. So it is like this. We have got summation and we have got the activation. Sigmoid हम use करेंगे, that is quicker, faster. आप कर चुके हैं. Now, if I say net H1, if I describe this, इसका नाम दिया हुआ है net और subscript में है H1. It means this is the network. Hidden layer के अंदर से hidden number 1 and here it is hidden number 2. What is happening here? Summation, जिसमें हमारे पास formula होगा W into X plus the bias. So it will be the all right. और इस चीज को हम छोटा कर देते हैं. This is happening over here. ये हमारे पास हो रही है summation. And then the activation on this side, you will see out H1. That is simply the sigmoid of the answer that we got here. And we will have net H1 and I will call it out subscript H1. This is for the hidden layer. इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिख दें so that net subscript H1. Similarly, for the next neuron, that is the output neuron, again we will have the same division. इसी को select करके copy करते हैं इसकी. And what is happening here, इसका color सारे का ही हम green कर लेते हैं, is that we have got again the summation on this side, but now the summation is going to be the out H1. यहाँ अगर मैं इसको if you allow me मैं यहाँ लिख दूँ, it will be W5 या जो भी होगा multiplied with out H1 plus B2. So this is going to be the summation और इसका नाम हमने रखा है net out 1. So I will call it net out 1. When we give it to the activation function, the output is simply called out 1 for the first neuron and out 2 for the second neuron. इसको आपने नेमिंग और ये सारा कुछ हो रहा है इसको याद रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी जब कैलकुलेशन हो रही है तो देयर इज एन एम्पल पॉसिबिलिटी that some careless mistake may happen. Another important thing to note is that the bias B1
is the same for both hidden layers, hidden neurons in the hidden layer. I repeat, bias B1 is going to H1 and H2, same value, 0.35. Similarly, bias 2 जो है, it is going to out 1 and out 2. Both the neurons same value, 0.6 इधर जा रहा है, 0.35 इधर जा रहा है. So it is the same bias to each of the neurons. कोई फर्क नहीं है. With this done, एक मसला हुआ, इसको हम पीछे कैसे लेके जा सकते हैं? ऑब्जेक्ट टेक इट बैक, बॉटम पे लेके जाना था. सर जब हम एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज करके नंबर ऑफ क्लासेस 1 देते हैं उसे जी, तो जो हमने ऊपर बनाए थे न्यूरल नेटवर्क्स, तो उसका वो आर्किटेक्चर उस तरह का होता है ना सर, हाँ जी, जिसमें एक इनपुट, और अगर हम वो नंबर ऑफ सिग्मॉइड ही करके नंबर ऑफ क्लासेस 2 दे रहे हो तो फिर आर्किटेक्चर सर इस तरह का बनेगा. यस. फिर वो 1 हॉर्ड इनकोडिंग करेगा. यस, वजह ये है कि अगर आप सॉफ्ट मैक्स वाला काम नहीं कर रहा सर. सॉफ्ट मैक्स वाला सिग्मॉइड कभी कर ही नहीं सकता. गॉट इट? और सर जो आपने ये हिडन लेयर्स लिखी है नीचे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली लेयर हिडन है? आपको किस चीज में पता चल रहा है ये? सर जैसे आर्किटेक्चर होता है तो वो बना होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी लेयर, इसे हिडन लेयर कहना है हमने? अच्छा, जो इनपुट से जुड़ी हुई है ना, दैट इज इनपुट लेयर. यस सर. जो आउटपुट से जुड़ी है, दैट इज आउटपुट लेयर. यस सर. इनके दरमियान में जो भी कुछ आएगा ना, दैट विल बी हिडन लेयर. ओके सर. सर मींस के इनपुट और एएनएन के दरमियान जो कुछ भी होगा वो सारा इनपुट और आउटपुट के. आउटपुट के सर, आउटपुट एएनएन बोला है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो भी होगा, दैट विल बी कॉल्ड ए हिडन लेयर. लेकिन सर आउटपुट भी तो एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क ही है ना. नो, आउटपुट, देखिए बात ये आ जाती है कि आउटपुट आपको नजर आ रही है, उसकी जो भी चीज निकलेगी, वैल्यू आपको फाइनली नजर आ जाएगी ना. यस सर. अगर इस सारे को आप बनाए, मेरे पास इसमें तस्वीर in the form of a black box. So what things can you see? सर ये क्या आउटपुट ही आएगा, इनपुट दे रहे होंगे और आउटपुट मिल रहा होगा. ये चीज तकरीबन आपको नजर आएगी कि यहाँ आपका फीचर जाएगा, इसको कैपिटल एक्स कह देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है. और इसमें x1 x2 जितने भी हैं xn तक होंगे, और यहां आपको नजर आएगी दी फाइनल आउटपुट. ये भी कैपिटल में मैं लिखता हूं, आउट 1 आउट 2, ये 1 हॉट एनकोडिंग वाली है अप टिल आउट k. 1 हॉट एनकोडिंग में जितने आपके पास क्लासेस होंगी. ऑलराइट, ये जो दरमियान में जगह है, इसका सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देते हैं. कैन यू एवर टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज इनसाइड दिस? प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे आप, सिर्फ आपके पास एक सिस्टम है जिसको आपने इनपुट दी और आउटपुट ली है. सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड ओवर हियर, दिस इज ऑल ब्लैक बॉक्स. एग्रीड और नॉट? यस सर, बिल्कुल. एज ए प्रोग्रामर आपको नजर आएगा, बट एज ए यूजर यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. जो भी इसके दरमियान में लेयर्स होंगी, एक है, दो है. जी सर, लेकिन सर हम हर न्यूरल नेटवर्क के बाद हम आउटपुट देख भी सकते हैं सर. तो आउटपुट तो देख रहे हैं, जो ग्रीन में वो आपको नजर आ रहा है, जो ये अंदर ब्लैक में वो आपको नहीं नजर आ रहा. नहीं सर, जैसे हम एक न्यूरल नेटवर्क में वो हम लाइन ऐड कर देते हैं विजुअलाइजेशन वाली, कि हर इमेज के बाद वो इमेज को करके वो आउटपुट देता है हर लेयर के बाद.
एक क्वेश्चन, हसनैन मेरा सवाल का जवाब दे। जी सर। जो विजुलाइजेशन की है, आप जो ये करते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, यू लुक एट द एक्टिवेशंस, यस सर। यही करते हैं ना? जी जी सर। एग्रीड? यस सर, बिल्कुल। ये प्रोग्रामर देख रहा है या एंड यूजर देख रहा है? सर ये प्रोग्रामर देख रहा है। बस दैट्स इट। सर ये एंड यूजर प्रोग्रामर को क्या देख रहा नजर आएगा? एक्स से लेके इनपुट्स और आउटपुट पे जो भी क्लास वो बताएगा। ओके सर। सर इनसाइड द जो सिस्टम क्या यूजर हो रहा वो तो है, जस्ट प्रोग्रामर देख सकता है बट इनपुट और नॉट द आउटपुट एंड देख यूजर। सकते हैं। ओके सर, ओके सर। तो जो चीज सिर्फ प्रोग्रामर देख सकता है, दैट इज नोन एज हिडन। लेयर। ओके जी, काफी हमने डिविएशन कर ली है, टाइम हमारे पास कम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बड़ी अच्छी नज़म है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं। ऑल राइट, सो लेट अस क्विकली डू दी कैलकुलेशंस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? बस कर दे क्वेश्चन, अब नो सर। कंप्लीट दिस लेक्चर। ओके, क्विकली वी आर गेटिंग दी इनपुट x1 एंड x2। सो अब यहां जो है नेट h1, so net h1 is going to be w1 x1 plus w2 x2 plus b1, right? So you do the multiplication, मैथ इसका करना शुरू करें। W1 is 0.15। इनकी छोटी छोटी ये मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, सुकून से इसको फुल स्क्रीन करके आप पढ़ लें। So it will be 0.15 into 0.05, 0.2 into 0.1. बायस इज 0.35। ये मैंने एक दफा सिर्फ लिखा है, दोबारा नहीं मैं करूंगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव दिस मच टाइम। सर 0.3775 सर। 0.3775, वेरी गुड। Now the out H1 is going to be the sigmoid of net H1। इसका sigmoid निकालें। जल्दी कर लें, आज मैं दूसरी क्लास को भी कराया, सो इट विल बी 0.593। वेरी गुड। ऑल राइट, सिमिलरली you can do it for net H2। अब इसमें ये वाली सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। H2 ये वाला है, सो यू विल हैव W3 into x1 plus W4 x2 plus B1। दोनों में बायस सेम वाली यूज हो रही है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर। हाँ जी, 0.4 0.4 सर मेरे पास तो ये है। सर 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 किया है, और सर फिर मैंने 0.1 को मल्टीप्लाई किया है 0.3 के साथ और ऐड किया सर 0.35। 0. ये W3 जो है ना 0.25 है। सर हम W2 नेट जी जी किधर सर। हो गए? वो ये अलामा, ये नेट H2। जी सर, मैं एक मिनट बात करता अभी हम इधर ही हैं। हूँ। ओके So it is W3 0.25 multiplied with x1 is 0.05
plus W4 is 0.3 multiplied with 0.1 plus B1 is 0.35. तो 0.4 इसका आंसर नहीं आएगा. It will be something else. 0.3925. And out H2 is going to be sigmoid of the net H2, and this is going to be 0.5968. 0.5968. All right. दोनों को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी है that both of these are going to give their contribution to out H1. एक को हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरे को बाद में देख लेंगे. So let's now move on to net out 1. Color change. So net out 1 is going to be W5 into the out H1 plus W6 into out H2 plus B2. सर वो ऊपर वैल्यूज नहीं नजर आ रही सर. जीरो 0.4 W5 है और 0.45. सर 1.10405. 1.104. ठीक हो गया. और इसके बाद इस पे एक्टिवेशन सर 0.7510. ओ एक मिनट अल्लामा, एक मिनट. ओके, सो द आउट 1, बाकियों को भी जरा समझ लेने दें क्या हो रहा है. सिग्मॉइड ऑफ नेट आउट 1. अब बताएं इसकी एक्टिवेशन क्या आएगी. सर 0.7510. 513. सर 0.751018 है. अच्छा, ठीक हो गया. वेरी गुड. नेट आउट 2 भी निकाल लें फिर. अब हाफिज उजैर कभी कभार कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त वो मूड में नहीं है. सो इट विल बी W7 into out H2 plus W8 W ये 1 है. हाँ जी, इसको कैलकुलेट कर लें. इसकी एक्टिवेशन के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 0.773. जस्ट कंफर्म इट दैट वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक. All right, so we've got these two answers that on the output न्यूरॉन 1 हमारे पास ये आंसर आया. आउटपुट न्यूरॉन 2 पे हमारे पास ये आंसर आ गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग
is calculation of the error. Target 1 was 0.01, target 2 is 0.99. यहाँ साइड पे लिख लेता है. Target 1 is 0.01, target 2 is 0.99. Now the error is going to be a summation I is equal to 1 से लेके n तक of the target minus the predicted square, और एंड्रू एन जी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, so 1/2. So this is going to be a loop. 2 दफा चलेगा because we have got 2 outputs. अगर हमारे पास 10 outputs होती हैं like the MNIST, तो ये आए 1 से लेके 10 तक चलता. If we had MNIST, यहाँ हमारे पास है simple 2 classes, so it will run from 1 till 2. अब target 1 minus predicted 1, so it will be 0.751. Let me save it. ये मेरा सिस्टम जो है ना ये रीस्टार्ट के करीब है. Okay, so this will be 0.101 minus the predicted 0.751 इसका स्क्वायर प्लस 0.99 माइनस दी 0.773 इसका स्क्वायर, और दोनों को ऐड जब आपने कर लिया हुआ है तो वी विल multiply it with 1/2 and you will get an answer which will be equal to 1.8286 sir. confirm करें. Sir 0.01 minus 0.751 का whole square. जी बाकी बच्चे 16 रह गए. बाकी इसका मतलब है कि 12 जो हैं they just got their attendance and left. सर मेरे पास यही आया सर. ठहर जाएं जी, ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 751 में से 0.01 अगर हम निकालें तो 74 रह जाएगा, और जब इसको स्क्वायर लेना है डज नॉट मैटर, माइनस था पॉजिटिव था, इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.741 का स्क्वायर सर 0.549081. .99 में से 0.773 निकालें तो 0.22 इधर, और 3 की वजह से ये 0 था तो 0.26 7722 0.21 217 जी सर. 0.217 इसका स्क्वायर, ये क्या आया जी आपके पास 0.04708 0.047 089 सर. 71 कर लेते हैं. जी सर. ठीक है, 4 प्लेसेस तक हम कर रहे हैं. जी इन्हें ऐड करें. सर 5471 है 91 है सर, आपका वो ऊपर कर सर है सर. किधर 91 सर 0.5961, और इससे आप डिवाइड कर लें 2 पे सर. हाँ जी. 0.298094. तो पहले आपने क्या किया था सर पहले मेरे पास आ रहा था 1.8286. ये जो है ना
you should be very very careful. It happens with everyone. मसला हो जाता है. No problem at all. But this is the error that we got. अब ये चूंकि हमने दोनों को ऐड किया हुआ है, so this is known as the total error. We have done the summation. और ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था. We have taken the derivative of this as well. So the total error is 0.2981. Now we do the back propagation. So using this total error, we are going to see what is the contribution of the previous layer, what is the contribution of the layer before that. So यहाँ इसकी contribution and then contribution of the hidden. Both have to be estimated. So we are going to do it line by line. 5 मिनट रह गए. I think we will have time only for one calculation. दूसरी जो है आप खुद करेंगे. So let us quickly do it. So partial of the total error with respect to, let's say, weight 5. Why did I take weight 5? टॉप पे देखें weight 5 सबसे ऊपर लिखा हुआ है. It is coming from out H1. लिहाजा ये जल्दी हो जाएगा. So this is going to be the error total with respect to out 1. जो हमें out 1 मिला था ये वाला. Then it will be multiplied with the partial of the out 1 with respect to net out 1. ये net out 1 के साथ. और net out 1 was getting calculated using this formula. इसे मैं यहीं से कॉपी करता हूं. कॉपी नहीं पूरा हुआ. Right, so this was the formula. This is the net out 1. और इसको हमने देखना है with respect to W5 because here is W5. So W5 जब यहाँ आता है, it is only getting multiplied with out H1. So we are going to be using the same thing. So now error total with respect to out 1. This is going to be derivative of the outside, derivative of the inside. ये आपको याद होना चाहिए. एरर ये है हमारे पास स्क्वायर्ड और 1/2 वाला. वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग. 1/2 पे ही रहेगा. इट इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर इधर आ जाएगा एंड टारगेट minus the outage one which is predicted. I hope you are understanding it. And this is chain rule. अब inside का हमने करना है. So it will be the contribution in predicted with respect to out H1. अपने साथ ही इसको आप कर रहे हैं तो it is going to be -1. इस नेगेटिव की वजह से it is -1. So this is going to be the answer. 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. So it is just going to be negative target minus out H1. Sorry. Out 1
H1 आप कहाँ से ले आए हैं इसके अंदर? This is predicted is out 1. Okay, so I think we have done this calculation जो हमने यहाँ किया हुआ है. This is target minus out 1. So it is equal to negative 0.741. Right? ये हमने यहाँ से इसको borrow कर लिया. The second thing that we have to do is out 1 with respect to the net. So out 1 with respect to net of out 1, and this is going to be equal to net of out 1 with respect to this. Gee, what do you think this will be? जल्दी जल्दी हसनैन. जी सर नेट आउट 1 सर हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है. हाँ जी, क्या होगा ये? What was out 1? Sigmoid of this. So it will be sigmoid into 1 minus sigmoid. Yes sir. And this is going to be, sigmoid was 0.751. So it is 0.751 into 1 minus 0.751. And the answer is 0.186. 186? Yes sir, 18699. 1869. यहाँ तक कर लेते हैं. Last of all, हमने देखना है what was the contribution of the net out 1 with respect to W5. Now going back to your earlier calculation over here, जो हमने यहाँ किया हुआ है, net with respect to W. This one written over here, so it will be W5 इस वाली टर्म में आ रहा है, it will be used, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी. So it is just output of the H1, and output of H1 was given here 0.593. So now we have these three values. Therefore, the final calculation of the error total with respect to W5, पहला आंसर आया negative 0.741. वो एक गलती हमने और कर दी है, यहाँ नेगेटिव है -741, sorry, and this is getting multiplied with -1, so it will be negative of this. The answer is +741. 0.741 multiplied with 0.1869 multiplied by 0.593, and the answer is 0.0822. Trust me, this is the correct answer. So this implies that the updated W5, इसके ऊपर प्लस हम लगा लेते हैं, is equal to the original W5 minus the learning rate alpha multiplied with the partial of the E total with respect to W5. Alpha is defined in the network, learning rate is 0.5. We are going to use the same. Originally W5 was 0.4 minus 0.5
multiplied with 0.0822, and we will get one answer, which is 0.3589. 0.3589. So this here is the W5 updated. We have done this thing. Next time we will continue from here and do the W6, W7, W8. आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, try at home under supervision. Try it yourself कि W6 को अपडेट कर दें, W7 को, W8, ओके. एक क्विक टिप फॉर यू पीपल, पता नहीं आप लोगों ने इस पे गौर किया है या नहीं किया. If we are talking of W6, सिर्फ फर्क क्या आएगा, नेट आउट 1 with respect to W6. So the net out 1 with respect to W6 is going to be going to the top. इस equation में W6 के साथ था out H2. So we are just going to replace it with out H2, which was equal to out H2 कहाँ है जी, out H2 0.5968. This implies that the error total with respect to W6, बाकी चीजें सेम रहेंगी, 0.741 multiplied with 0.1869 multiplied with 0.5968, and the answer of this is जी हसनैन. जी सर कर रहा हूँ. जल्दी कर लें, 7 मिनट ऊपर हो गए, बच्चे ठंड में बेचारे बैठे हुए. सर 0.08265525. 0826 कर लूं? Yes sir. Okay, very good. And this implies that W6 plus is, पुराना W6 क्या था, नेटवर्क में देखते हैं. W6 was 0.45 minus the alpha, that is 0.5 multiplied with 0.0826, and this will give us 826 का आधा होगा 413 0.408 sir. 0.4087. 4087. So this is the updated W6. So I have done half the work for you. आप लोगों ने सिर्फ अब W7 और W8 you have to do it yourself. Okay, this let me export as _3. I'm going to upload this in a while, and you will have the quiz on Monday. That's it. Thank you very much. Any question? Asnan, कोई question? कोई चीज क्लियर ना हो? सर वो बस वेट्स का ये है कि हर न्यूरल नेटवर्क्स का जो डिफरेंट वेट आएंगे सर, तो वो कैसे अपडेट होगा, मतलब उसे 2-3 तरफ से अगर वेट्स मिलते हैं
तो कौन सी वैल्यू सेव रखेगा? नहीं नहीं, 2-3 तरफ से कहाँ से उसको वेट मिल रहे हैं? सर अगर अगर जैसे W5 है तो वो 2 न्यूरल नेटवर्क्स में जा रहा होगा कि एक में ही जा रहा होगा? अच्छा, 1 मिनट, लेट मी ओपन द फाइल अगेन। ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा कर लिया और ये 7-1 आज का ये लेक्चर। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। द लेक्चर इज फॉर्मली कंप्लीट। ये सिर्फ हसनैन का क्वेश्चन है विच हैज टू बी आंसर्ड। ओके, आपने ये कहा है कि देखें W5 तो हमने यहां से कर लिया, राइट? यस सर। अगर इस नेटवर्क को हम थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग क्योंकि अब बाकियों का फिर मसला हो जाएगा। W5 इज ओनली कमिंग फ्रॉम हिडन 1। जी सर बिल्कुल। W6 इज कमिंग फ्रॉम हिडन 2। लेकिन हिडन 1 जो है दैट डिपेंड्स ऑन बोथ दीज। जी सर ठीक बिल्कुल। हो गया? जी जी सर। देयरफॉर इसे हमने दो चीजों को कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे तो इसका W1 अपडेट होगा। ओके सर, यानी कि इन दो जिन जिन पे वो डिपेंड करता है वो ऐड होंगे। All dependencies must be added together. ओके सर, बस यही यही लास्ट कंफ्यूजन थी सर कि वो किसके रिजल्ट सेव करेगा, तो वो दोनों। Yes, yes. यस सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा सर। ठीक हो गया जी। So जी that's it for today. सर, वो एक रिक्वेस्ट थी सर। करें जी, करें। सर फरहान दाऊद को मेल की हुई है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उनका वो ऑफिस में भी नहीं आ रहे। क्यों? सर वो मैंने रेफरेंस, उन्होंने कहा था टेम्पलेट सेंड कर दो, तो वो मैंने टेम्पलेट भी उन्हें सेंड कर दिया हुआ है, मेल भी कर दी हुई है, और टीम्स पे भी। टीम्स पे उन्होंने सीन नहीं किया अभी तक, और पता नहीं मेल पे उन्होंने देखा या नहीं। चले, वो अभी हमारा तो हमें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में बुला लिया हुआ है, जी सर। लेकिन फरहान साहब जो है वो अभी नहीं आ रहे। जी जी सर। तो चले, लेट मी फाइंड आउट जी सर। कि क्या मतलब हमें पता चलता है। ओके, आई रिपीट अगेन, आज हमने जो है आउट 1 देखा, उसकी बेस पे हमने W5 W6 को अपडेट किया। नेक्स्ट टाइम हम H1 को देखेंगे। जी सर। H1 में एक एरर आएगा यहां से, जी जी सर। एक एरर आएगा यहां से। गॉट इट? जी सर, इन्हें भी सर हम ऐड ही करेंगे ना? ये करना पड़ेगा। जी सर, तो वो फिर एट द एंड एक एरर बनेगा। बिल्कुल सर। यहां होगा इसी तरह से। फिर अगर और इसमें लेयर्स होती तो ऐड ऐड ऐड। W1 को अपडेट करने के लिए वी विल हैव टू फाइंड द पार्शियल्स ऑफ द आउटपुट 1 एंड लेकिन सर आउटपुट। H1 और H2 को एरर तो सब सेम ही मिलेगा ना? देखें, H1 को 2 एरर मिलेंगे ना। अब वो ऐड होके एक ही वैल्यू नहीं सर से मिलेगी? ओ भाई, पार्शियल देखें, अब ये गौर से देखें। एरर 1 जो था जी ये सर। जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जी बिल्कुल सर। इसमें W5 की कंट्रीब्यूशन थी, जी सर बिल्कुल। वो था 0.4। जी सर। जी एरर 2 में W7 की कंट्रीब्यूशन थी, जी सर बिल्कुल। वो थी 0.5। बिल्कुल सर। तो दोनों की कैलकुलेशन आंसर जवाब फर्क आएगा। बिल्कुल फिर ठीक इन है। दोनों को ऐड करेंगे। और फिर वो H1 का एरर बन जाएगा, और जो यस, H2 का एरर होगा वो विद रिस्पेक्ट टू W6 और W8 होगा। एग्जैक्टली, यू हैव गॉट इट नाउ। यस सर। ठीक हो यस। गया? जी तो सर। दैट्स इट, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।